Good evening, student. This is a new chapter, alcohol, phenols and ethers. Now introduction. Alcohol, it means there is a ROH. R means alkyl group. Suppose R is CS3, it means CS3OH. R is C2H5, it means C2H5OH. So CS3OH is a methanol and C2H5OH is a ethanol. You know very well the IUPAC name of ethanol. Now the secondary suffix is OL. Suppose you have CS3OH. So we apply only suffix, not prefix. Now what is the prefix of OH? Is a hydroxy and the suffix is ol. Now suppose you have alkane. Alkane the formula CH4. Now there's a CS3 and one H, it means there's a CH4. So alkane, one hydrogen replaced by OH group. So one hydrogen replaced and OH attached, it means ROH. ROH is the alcohol. Now monohydric alcohol, what is a monohydric alcohol? Suppose you have only one OH group is called monohydric. So there's a one OH, there's a one OH. Now what is the IUPAC name? This is a methanol, this is a ethanol. And these are primary alcohol. Now how to calculate that this is primary alcohol? Suppose OH group attached with this carbon and this carbon attached with only one carbon. This carbon attached with only one carbon, this is a primary alcohol, but this is also a primary alcohol. Okay. Now the second, this is a secondary alcohol. How to calculate that this is a secondary alcohol? This OH connect with this carbon. Okay, look, this carbon attached with two other carbon. It means this is a 2 degree. And the same is this OH attached with this carbon and this carbon attached with 3 other carbon. It means there is a 3 degree. So the common name is isopropyl alcohol and the IUPAC name is propane 2-ol. You know very well the IUPAC name. Same as there is a 1, 2, 3. This is a long chain. So 2 methyl. Yeah, suppose 1, 2, 3. So 2 methyl. And how many carbon in long chain? So 1, 2, 3. This is a propane 2-ol. This is a tertiary butyl alcohol is a common name. And this is a tertiary alcohol. Now the next is polyhydric alcohol. You know very well the poly means more than one. So more than one OH group is a polyhydric alcohol. Now there is a 2 OH group, it means polyhydric. There is a 3 OH group, this is a polyhydric. 2 OH group is a dihydric and 3 OH group is a trihydric. Now what is the IUPAC name? 1, 2. There is a 2 carbon, it means ethane. Single bond arrangement is there, this is ethane. And there is a 2 OH group. First is 1 carbon and the second is second carbon. So 1, 2 diol. This is a common name, ethylene glycol, and this is a dihydric alcohol. Same as this is propane 1, 2, 3. There is a 3 OH group. Only you know very well. Suppose you have only suppose you have only OH group. So we apply only suffix, not prefix. So there is a propane 1, 2, 3 triol, and this is a common name glycerol or glycerine. And there is a 3 OH group. It means this is a trihydric alcohol. Clear? Clear all of you? Next, what is the allylic alcohol? Suppose you have OH group and OH group attached with this carbon and this carbon always attached with double bond carbon. देखो यहाँ पर जो OH है जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन आगे के डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए. दैट इज द एलाइलिक अल्कोहल. सेम एज देखो डबल बॉन्ड जिस कार्बन से अटैच्ड है, OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन डबल बॉन्ड अटैच है. दैट इज ऑल्सो अ एलाइलिक अल्कोहल. एंड व्हाट इज द IUPAC नेम? तो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी इज फर्स्ट 1, 2, 3. So there is a prop. The second carbon is 2ene. Double bond is there, and one carbon contain OH group. There is a ol group. And vinylic alcohol, what is a vinylic alcohol? OH group attached with this carbon and this carbon attached with double bond carbon. There is a different and there is a different. यहाँ पर OH जिस कार्बन से अटैच्ड होगा वो कार्बन किसी डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए. एंड OH जिस कार्बन से अटैच होना चाहिए वो कार्बन वही वाला कार्बन डबल बॉन्ड अटैचमेंट होना चाहिए. दैट इज अ इथेनॉल. इथेनॉल मतलब देयर इज अ हाउ टू कैलकुलेट 1, 2. तो 1 contain double bond and same OH group. तो ethene 1-ol भी कर सकते थे. तो दिस इज अनस्टेबल. एंड हाउ टू स्टेबल कंपाउंड? तो देखो लास्ट टाइम मैंने तुम लोग को आइसोमेरिज्म में पढ़ाया था. देखो इसको हम 1, 2, 3 कंसिडर करते हैं. आप मेरे आइसोमेरिज्म के नोट्स में देखना. दिस इज अ टॉटोमेरिज्म.
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ये 4th टॉपिक है. फर्स्ट इज अ चेन, द सेकंड इज पोजीशन, थर्ड इज मेटामेरिज्म, फोर्थ इज टॉटोमेरिज्म एंड फिफ्थ इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म. ओके, दिस इज अ टॉटोमेरिज्म. टॉटोमेरिज्म मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन, रीअरेंजमेंट इज देयर. तो दिस इज अ अनस्टेबल, देयर इज अ इन प्लस ऑल ग्रुप इज देयर. तो देखो यहां से कंसिडर करते हैं 1 2 3. जो हम हमेशा जो पहला वाला कंसिडर करते हैं उसमें हमेशा क्या होना चाहिए, H होना चाहिए. ये H कहां रिप्लेस होता है, इस कार्बन पे, थर्ड वाले पे. तो 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेट होता है. तो 1 से 3 पे हाइड्रोजन माइग्रेट हुआ, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर. तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, जब ये डबल बॉन्ड का ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड. तो देखो वही चीज है. एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल सॉरी. CHO group is a अल group. So this is a keto form and this is a stable and the common name is acetaldehyde. Now what is a benzylic alcohol? Suppose you have benzene ring. Benzene ring attached with one carbon. अगर ये वाला part, this is a benzyl and there is a OH, it means OH means alcohol. So this is a benzyl alcohol. Now this is a functional group. तो this is a substituent. तो देखो इस कार्बन से 1 में क्या है, this is a phenyl group. This is a C6H5 group. This is a phenyl group. So 1-phenyl methanol is a IUPAC name and also IUPAC name is benzyl alcohol. अब देखो इसको कैसे कंसिडर करेंगे. This is not a benzyl alcohol. This is only benzyl alcohol. क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन के साथ, इस रिंग के साथ 2 कार्बन अटैच्ड है. इस कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच होगा वो कार्बन अगर OH कंटेन कर रहा है दैट इज अ बेंजाइल. अगर यहाँ Cl होता तो बेंजाइल क्लोराइड. Okay, but this carbon, the benzene ring attached with this carbon and this carbon also connect with another carbon. This is not a benzyl. So this is a 1 2. तो 2 में क्या है, phenyl group. This is a 2-phenyl and there is a 2 carbon ethane and 1 carbon contain suffix ol group, तो ethanol. Introduction of phenol. तो देखो this is a structure of phenol. अगर इसको रिंग भी कर सकते हो आप. तो देखो यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, इसकी जगह पे OH आया, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो गया. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, C6H6. नाउ 1 हाइड्रोजन रिप्लेस विद OH ग्रुप. दिस इज अ C6H5OH. दिस इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड दिस इज अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. सेम देखो बेंजीन अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है और एक OH अटैच हो रहा है, इट मींस फिनॉल. नाउ व्हाट इज अगेन मोनोहाइड्रिक फिनॉल. दिस लास्ट टॉपिक इज अल्कोहल एंड दिस इज फिनॉल. ओनली 1 OH ग्रुप. देखो यहाँ पे 1 OH 1 OH 1 OH एंड 1 OH. तो देखो इस OH के साथ ये CH3, दिस इज अ मेन ग्रुप. तो देखो यहां से काउंटिंग करो 1 2, तो 2 मिथाइल. अब इसको छिपा दो, ये क्या बना, फिनॉल. सेम 3 मिथाइल फिनॉल, सेम 4 मिथाइल फिनॉल. एंड द कॉमन नेम ऑफ दिस OH के साथ अगर इस ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है तो इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल. इसको मेटा, इसको पैरा. अब देखो यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप है. किस किस पोजीशन में, 1 2 3 4 5 6. तो 2 4 6 में, तो 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल. एंड द कॉमन नेम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. अब एग्जाम में आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पिक्रिक एसिड एंड व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ पिक्रिक एसिड. तो 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल. क्लियर स्टूडेंट. ओके, नाउ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल मोर देन 1 OH ग्रुप. तो देखो यहाँ पे 2 OH है. देखो OH कहां पे अटैच्ड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक यहां पर, एक यहां पर, एक पैरा पे, एक ऑर्थो पे. तो इसको बोलेंगे बेंजीन. ये हो गया बेंजीन. और फर्स्ट एंड सेकंड वाले पे क्या है, 2 ओल ग्रुप है, तो इसको क्या बोलोगे, डाईओल. या फिर इसको बोल सकते हो 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन. और इसी का कॉमन नेम है केटिचोल. अब देखो यहां पर इस OH को यहां पे शिफ्ट किया है, तो ये हो गया बेंजीन 1,3 डाईओल या फिर 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन. इसको बोलते हैं हम रिसोर्सिनॉल. और अगर ये OH दोनों एक दूसरे के अपोजिट में, तो बेंजीन 1,4 डाईओल और इसी को बोलते हैं 1,4 डाईहाइड्रोक्सो बेंजीन. इसी को बोलते हैं कॉमन नेम में क्यूनॉल. ये कॉमन नेम याद रखिएगा. अगर यहां पे OH है तो केटिचोल, यहां पे OH है तो रिसोर्सिनॉल, यहां पे OH है तो क्यूनॉल. अब देखो 3 OH ग्रुप अगर अटैच्ड है, दिस इज अ पॉलीहाइड्रिक. तो ये होगा डाईहाइड्रिक, ये होगा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल. अब देखो बेंजीन इसमें कहां पर है, 1 2 3. तो बेंजीन 1,2,3 ट्राईओल या 1,2,3. 3 OH है तो हाइड्रोक्सी बेंजीन. अब देखो यहाँ पे हाइड्रोक्सी क्यों यूज हो रहा है. अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप है तब हम हाइड्रोक्सी लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक ही OH ग्रुप है तो ये हमेशा फिनॉल होगा. और इसी को कॉमन नेम में बोलते हैं पायरोगेलॉल. अब इंट्रोडक्शन ऑफ ईथर.
तो देखो इंट्रोडक्शन ROR, अब RR सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी। अगर सेम हुआ तो दिस इज सिमेट्रिकल और अगर डिफरेंट हुआ तो अनसिमेट्रिकल। इसी को बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन, दिस इज अ कॉमन नेम। तो देखो CH3O CH3, O को हमेशा लेस कार्बन से कंसिडर करते हैं। तो देखो यहाँ पे दोनों सेम है तो इसको बोलेंगे मिथॉक्सी। इस ये पार्ट हुआ मिथॉक्सी एंड ओनली वन कार्बन अटैच विद सिंगल बॉन्ड, इट मींस मिथ एंड सफिक्स इज एन, मीथेन। और इसी को बोलते हैं देयर इज अ 2 मिथाइल ग्रुप, तो डाई मिथाइल एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ ईथर, तो डाई मिथाइल ईथर सेम। अब देखो यहाँ भी C2H5 दोनों तरफ है तो इसको हम लेस कार्बन यानी दोनों तरफ सेम है तो दिस इज अ एथॉक्सी। 1 कार्बन के लिए मिथॉक्सी, 2 कार्बन के लिए एथॉक्सी एंड देयर इज अ 2 कार्बन ईथेन, so this is there is a 2 ethyl group, it means diethyl ether. Clear? Done? Okay. Now unsymmetrical ether देखो, there is a 1 CH3 and there is a 1 C2H5, तो oxygen always contain less carbon atom attached with less carbon atom, तो we only consider oxygen attached with less carbon atom। तो देखो यहाँ पे less carbon atom से अगर कार्बन ऑक्सीजन अटैच्ड है तो इसको बोलेंगे मिथॉक्सी एंड देयर इज अ 2 कार्बन इज अ इथेन। अब अल्फाबेटिकली में ई पहले आता है एम बाद में, तो इथाइल मिथाइल ईथर सेम एज। अब देखो यहाँ पे दिस इज अ मिथॉक्सी एंड दिस इज कॉल्ड बेंजीन, तो मिथॉक्सी बेंजीन या फिर मिथाइल एंड दिस पार्ट इज फिनाइल। जब कोई भी बेंजीन रिंग किसी ग्रुप को अटैच करता है तो ये पार्ट इसका फिनाइल ग्रुप होता है। जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए यानी C6H5 से 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए तो दिस इज अ फिनाइल। सपोज अगर मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4, उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो तो बनेगा CH3, दिस इज अ मिथाइल। उसी टाइप से C2H6 इज अ इथेन, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो तो इथाइल। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइक्लिक ईथर। अब देखो इसमें दोनों कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़े। अब कैसे जुड़े देखो, अभी तक सेंटर में था अब यहां पर है, सेंटर पे नहीं है देखो। तो इस पार्ट को बोलते ऑक्सीरेन, ये याद रखना, दिस पार्ट इज ऑक्सीरेन। या फिर इसी को बोलते हैं एपॉक्सी, 2 कार्बन है, 2 कार्बन से जब ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो बोलते हैं एपॉक्सी, और दो कार्बन से जब ये ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं एपॉक्सी एंड 2 कार्बन इज इथेन एंड द कॉमन नेम इज ऑक्सीरेन। अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब देखो 1 2 3 इसके 2 नेम हो सकते हैं। देखो अगर आप ऐसे काउंट करते हो 1 2 3, इस ऑक्सीजन को अगर 1 2 3 करते हो 1 2 3 तो ये होगा क्या, देखो ध्यान से समझना। अगर यहां पे 2 और 3 में क्या है, देखो अगर यहां से काउंट करते हो 1 2 3 तो 1 2 में क्या है, 1 2 में एपॉक्सी, 1 2 के साथ एपॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है एंड देयर इज अ 3 कार्बन प्रोपेन। और अगर इसको आप दूसरी तरह से कंसिडर करते हो, एग्जाम में मान लो ऐसे आ जाता है, तो देखो इसको 1 इसको 2 या इसको 2 करो क्योंकि यहां से ये ग्रुप जुड़ेगा, तो 1 2 3 तो देखो 2 में हो गया मिथाइल, 2 मिथाइल एंड दिस पार्ट इज व्हाट ऑक्सीरेन, 2 मिथाइल एंड दिस पार्ट इज ऑक्सीरेन। तो दोनों एग्जाम में आ सकते, कंफ्यूज मत होना। अब देखो ये दोनों को अलग अलग से बताया है। अब इसको अगर 1 कंसिडर करते हो तो 1 2 3, 1 के बाद ये 2 तो नहीं हो सकता, 1 2 3 है या 1 2 3। अब 2 में भी मिथाइल है और 3 में भी मिथाइल है, तो 2,3 डाई मिथाइल एंड दिस पार्ट इज ऑक्सीरेन। अब इसको उस टाइप से करो 1 2 3 4, तो 2 और 3 में क्या है एपॉक्सी एंड देयर इज अ 4 कार्बन इज अ ब्यूटेन। क्लियर स्टूडेंट? ओके, क्लियर? ओके। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब देखो एल्काइल हैलाइड से बनाते हैं। एल्काइल हैलाइड मींस CH3Cl C2H5Cl। कैसे बन रहा है, बाय रिएक्शन विद एक्वस एल्कलाई। एल्कलाई मींस KOH एक्वस, NaOH एक्वस और मॉइस्ट AgOH। मॉइस्ट मतलब इसके साथ क्या होगा, वाटर। अब RX को आप एक्वस KOH या एक्वस NaOH या मॉइस्ट AgOH के साथ कराओगे तो इन सब में से क्या बाहर निकलेगा, OH माइनस, और ये K के साथ X निकल आएगा तो KX, और ये OH आकर यहां जुड़ जाएगा तो ROH। एंड दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज अ न्यूक्लियोफिलिक? न्यूक्लियोफिलिक मींस नेगेटिव चार्ज। देखो अगर इसको ब्रेक करो तो K प्लस OH माइनस, तो किसका अटैक हो रहा है इसमें, OH का अटैक हो रहा है ना, तो OH इज अ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज देयर, तो OH का अटैच हो रहा है और ये बाहर निकल रहा है किसके साथ, K के साथ। तो किसका अटैच पहले हो रहा है,
नेगेटिव का कि पॉजिटिव का? नेगेटिव का। ये नेगेटिव जब तक इसको रिप्लेस नहीं करेगा, ये नेगेटिव आएगा तभी तो ये रिप्लेस होगा, यानी इस नेगेटिव चार्ज का अटैक हो रहा है, इट मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर किसी पॉजिटिव का अटैक होता है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखो यहां पर ऐसे होता है, जब ये आके यहां पे जुड़ता है तो ये OH आकर बैक साइड से अटैक करता है, बैक साइड से। इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम SN2 मैकेनिज्म। हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स में पढ़ाया था। इसमें किसी भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता। SN2 में क्या होता है, वन स्टेप रिएक्शन होता है। तो देखो ये हमेशा कहां से अटैक करता है, बैक साइड अटैक करता है। तो ये बैक साइड अटैक करेगा, यानी OH आकर यहां जुड़ेगा। जैसे ये OH आकर यहां जुड़ेगा तो ये X क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। एक्चुअली यहां पे शो नहीं किया है, यहां पे ऐसे दिखाया जाता है। तो ये निकल गया, तो ये OH आकर अटैच हो गया, यानी OH किस साइड पे अटैच हो रहा है, X यहां पे था लेकिन OH यहां पे अटैच हो रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है, इन्वर्जन। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, OH का। तो देखो यहां पे कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में, एक RX है और एक OH है। तो ये क्या है, OH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अटैक OH ऑन बैक साइड, ये हमेशा बैक साइड से होता है। जब बैक साइड से होगा तो R के इधर साइड पे OH जुड़ेगा, तो दिस इज अ इन्वर्जन। अगर इसी साइड पे जुड़ता है तो इसको बोलते हैं रिटेंशन। अब देखो नो कार्बोकैटायन फॉर्म। कार्बोकैटायन का मतलब होता है कार्बन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाए, तो यहां पे कुछ नहीं लगा है। अब ये मत बोल देना कि सर ये यहां पे लगा हुआ है। एक्चुअली ये क्या होता है कि जब ये X बाहर निकलेगा, एक्चुअली ये जब ये अटैच्ड होता है तो यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। इसके ऊपर पॉजिटिव नहीं है, ये एक्चुअली इतना फास्ट होता है कि ये स्टेप बस शॉर्ट टाइम के लिए बनता है, हम इसको दिखा सकते हैं। दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, एंड दिस इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन। क्लियर? अब देखो कैसे, अब देखो डायरेक्टली रिएक्शन है, यहां से KBr निकला, OH आके अटैच हुआ, यहां से OH आके अटैच हुआ और NaI बाहर निकल गया, अब मॉइस्ट के साथ ये। क्लियर? इन ऑल दिस रिएक्शन एलिमिनेशन अकर साइड बाय साइड। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत एलिमिनेशन भी होता है साइड बाय साइड। दस एल्कीन्स आर ऑल्सो फॉर्म, यहां पे एल्कीन नहीं दिख रहा है आपको, देखो आगे दिखेगा। हेंस दिस रिएक्शन इज नॉट प्रिफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, ये इसको प्रिफर नहीं करते अल्कोहल की प्रिपरेशन में। तो देखो एलिमिनेशन अगर सबसे ज्यादा किसमें होता है, 3rd डिग्री में, 3rd डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री में। और 3rd डिग्री किसके लिए होता है, 3rd डिग्री SN1, E1 और E2 दोनों में होता है, और SN2 में ओनली फॉर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, ये याद रखना। तो दिस इज अ प्राइमरी, तो अगर ये प्राइमरी है तो इसके साथ कौन सा होगा, SN2 के SN1, डेफिनेटली SN2 की। SN2 में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी 1 डिग्री की होती है। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये बन रहा है। अब इसमें साइड बाय साइड क्या होता है, एलिमिनेशन भी होता है। अब एलिमिनेशन कैसे होता है, ये देखो, ग्रुप के सामने वाला कार्बन होता है अल्फा, फिर बीटा, यहां से एक हाइड्रोजन निकलता है, ये हाइड्रोजन किसके साथ जाता है, इस OH के साथ। तो देखो वाटर बना, और ये K के साथ Br, तो KBr, और जब यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो यहां पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2। अब ये वाला क्या है आपका SN2, और ये क्या होगा आपका, डेफिनेटली कौन सा होगा, SN1, क्योंकि इसमें 3rd डिग्री है, तो 3rd डिग्री के लिए कौन सा होता है, SN1। तो इसमें कौन सा रिएक्शन आप बोलोगे, SN1 रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट? नाउ द नेक्स्ट इज फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन में क्या है, बाय एडिशन ऑफ वाटर। अब एडिशन ऑफ वाटर करोगे, देखो अब ये H, अब देखो ये अगर बॉन्ड मैं इधर शिफ्ट करूं इसका, तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव वाला किस पे आएगा, पॉजिटिव वाले पे, और नेगेटिव पे कौन सा आएगा, H। देखो ये बना है। अब देखो इसको अगर मैं ऐसे शिफ्ट करूं, तो यानी इसने इसके इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के साथ कौन सा वाला जुड़ेगा, OH नेगेटिव वाला, और नेगेटिव के साथ जुड़ेगा H वाला। तो दिस इज अ मार्कोनिकॉफ रूल। अब एसिड कैटेलाइज क्या होता है, वही चीज है। अब एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ वाटर का कभी रिएक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता ये सुनो, क्योंकि H2O भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये भी क्या है, जिसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, वो भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल किस चार्ज का होता है, दोनों नेगेटिव चार्ज का। ओके, अब ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो दोनों न्यूक्लियोफाइल
एक ही चार्ज के होंगे, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव नेगेटिव का कभी अट्रैक्शन होगा नहीं हो सकता, तो दिस इज नो रिएक्शन। क्लियर? ओके। अब यहां पर देखो अनसिमेट्रिकल के लिए करते हैं। अनसिमेट्रिकल में कौन सा रूल लगता है? मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? मार्कोनिकॉफ रूल याद करो, जहां पर लेस हाइड्रोजन होते हैं डबल बॉन्ड में, उस कार्बन पे OH माइनस अटैक करता है जहां पर लेस हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पे लेस हाइड्रोजन है तो यहाँ पे OH अटैक करेगा, और जहां पे मोर देन 1 हाइड्रोजन हो, इससे ज्यादा हाइड्रोजन हो, वहां पे क्या अटैक करता है? H+। देखो अब यहां से अगर इसको शिफ्ट करें तो इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और वाटर को ब्रेक करो तो H+ OH माइनस, तो OH कहाँ अटैक करेगा? इस पे, और H+ यहाँ पर। क्लियर? मैकेनिज्म देख लो चाहे तो आप। तो देखो ये मैकेनिज्म इसका। अब देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव। या फिर ये इधर भी शिफ्ट हो सकता था तो इस पे पॉजिटिव आएगा। देखो ये H+ आके अटैक हुआ ना। अब एक बार H को यहां अटैक करवाओ, क्योंकि जब ये इस पे आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो जब यहां पे हुआ तो CH3, तो पॉजिटिव किस पे आएगा? इस पे। और अगर इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करो तो इस पे आकर हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्योंकि अब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखो दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, दिस इज 1 डिग्री, तो विच इज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन? 3 डिग्री, फिर देन 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो इसमें 2 डिग्री फर्स्ट है, फिर 1 डिग्री, यानी इसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा तो वो होगा माइनर, और इसके हिसाब से जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा मेजर। तो देखो इसी को लिया है मैंने 2 डिग्री। 2 डिग्री कार्बोकैटायन, दिस इज अ प्लेनर, यानी प्लेन ऑफ पेपर पे होता है। तो देखो यहां से OH कहां पे अटैक करेगा? अब OH के पास लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्या करेगा? इसके साथ जाकर अटैच्ड हो जाएगा। देखो OH2। क्लियर? अब देखो इस रिएक्शन की एक खासियत क्या होती है। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? एसिडिफाइड वाटर। तो अभी इसका H+ का यूज हो रहा है। तो रिएक्शन में याद रखना कि कैटलिस्ट का सिर्फ रोल होता है रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, ना कि उसके साथ इन्वॉल्व होता है। अगर ये H+ अभी यहां पर यूज हुआ है तो इसको निकलना भी है। तो देखो OH2 बना, अब यहां से क्या होगा? एक H क्या होगा? रिप्लेस हो जाएगा। जैसे ही रिप्लेस होगा किस फॉर्म में होगा? H+ के फॉर्म में। अब इस डाइल्यूट H2SO4 में से क्या निकला था बाहर? H+, तो क्या बचा था? HSO4 माइनस। उस HSO4 के साथ फिर से ये रिएक्ट करके क्या बना दिया? देखो H2SO4, यानी H2SO4 का कोई रोल हुआ? सिर्फ रोल क्या हुआ? रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड देने के लिए। अब देखो यहां क्या बन गया? ये जैसे रिलीज होगा तो अपने ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन देके इसको जाएगा। देखो कैसे, जैसे यहां पर क्या है? OH2 पॉजिटिव। क्लियर? और इसके साथ बॉन्ड जुड़ा हुआ है। अब इस OH2 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? ओके, यहां से एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके जाएगा, तो देके जाएगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव, और इसके ऊपर नेगेटिव, तो प्लस माइनस क्या हो गया? न्यूट्रल। न्यूट्रल हो गया। यहां से क्या निकल गया बाहर? H+, ये निकल गया। अब जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दिए तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया? न्यूट्रल। अब ये H+ जो बाहर बचा था HSO4 माइनस, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? H2SO4, क्योंकि H2SO4 को जब हम ब्रेक करते हैं तो किसमें ब्रेक होता है? H+ और HSO4 माइनस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब देखो पॉइंट्स याद रखो। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, इसमें क्या हो रहा है? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये हमारा कौन सा रिएक्शन है? जनरली इसको हम कौन सा बोल सकते हैं? अभी बताता हूं मैं। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन, मतलब जो स्टेबल कार्बोकैटायन हो। और रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो पॉसिबल। रीअरेंजमेंट मैंने पढ़ाया है, आप लोग ध्यान से देखना, ये मैंने आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक में पढ़ाया था, ऑर्गेनिक वाले चैप्टर में। क्लियर? तो ये जनरली क्या होता है इसमें, जिसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, जनरली से हम क्या मानते हैं? SN1 रिएक्शन रेट ऑफ स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल पॉसिबल हो सकता है अभी, लेकिन रीअरेंजमेंट जहां पर दिखेगा वहां पे मार्कोनिकॉफ रूल पॉसिबल नहीं होगा, वो आगे समझोगे। अब देखो इन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, अब यहां पे ऑप्टिकल एक्टिव तो है नहीं, क्योंकि देखो कोई भी कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप नहीं है। तो ऑप्टिकल एक्टिव अगर होता तो कायरल कार्बन होता, और कायरल कार्बन होता है तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज यानी इनैंशियोमर। अगर ऑप्टिकल कंपाउंड होता तो अटैक ऑफ H2 ऑन बोथ साइड, यानी SN1 रिएक्शन में क्या होता है? 2 स्टेप में होता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। उसमें एक बार पहले कार्बोकैटायन बनता है, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से और फ्रंट साइड से दोनों से होता है।
ये अगर आपको टॉपिक समझना है तो हेलो एल्केन्स में चले जाओ। हेलो एल्केन्स टॉपिक जो मैंने बताया था उसमें SN1 और SN2 को पढ़ो। तो उसमें क्या होता है, 2 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। अगर बैक साइड से अटैक होगा तो इन्वर्जन, और फ्रंट साइड से अटैक होगा तो रिटेंशन, और इन दोनों के मिक्सचर को ही हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। अब देखो आगे कंपेयर करते हैं। तो देखो यहाँ पे है, अगर ये बॉन्ड यहाँ गया, कंपेयर करते हैं रेट ऑफ हाइड्रेशन। तो ये यहाँ गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव, ये कौन सा है 1 डिग्री, ये कौन सा है 2 डिग्री, और ये कौन सा है 3 डिग्री। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा किसमें होगा, जिसका स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो 3 डिग्री, फिर देन 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। सेम है इसमें, देखो इसमें भी सब देखो ऊपर का सेम है, यानी सब में ऊपर में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो कि Cl ग्रुप है, NO2 ग्रुप है और OCH3 ग्रुप है। क्लियर। वो OCH3 क्या होता है, इसके पास लोन पेयर होता है तो प्लस एम इफेक्ट। NO2 क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है न्यूक्लियस से, बेंजीन रिंग से, ये होता है -m और ये होता है -i। अब देखो ध्यान से देखो कि जब ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाएगा, यानी ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो लेगा कौन सा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने की प्रोबेबिलिटी हो। तो देखो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है। इसके पास क्या है, लोन पेयर, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में, बेंजीन रिंग में सेंड करेगा। तो सेंड करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और जिसके कारण से ये चार्ज क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो सकता है। तो प्लस एम इफेक्ट में सबसे ज्यादा होता है और माइनस में सबसे कम होता है। माइनस क्या करेगा, ऑलरेडी इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन और जब रिंग से खींचेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत कम, यानी ये कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, प्लस एम, और सबसे कम किसमें होगा, माइनस में। अब -i से भी क्या करता है, ये थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी कमी है, तो इलेक्ट्रॉन अगर अंदर से खींचेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज, यानी अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये भी क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, तो ना ही ये बस अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा के सिंपल बैठा हुआ है, तो कोई ना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना ही कोई दे रहा है। तो जो दे रहा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। देखो D पहले है, फिर A वाला है, क्योंकि A का कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये और इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो उसके बाद होगा B, उसके बाद लास्ट में होगा C। सेम एज ऐसे इसमें भी देखो क्या है, इसमें भी देखो क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था। देखो ये इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव, क्लियर, इसके ऊपर भी पॉजिटिव, इसके ऊपर भी पॉजिटिव। तो ये तो 3 डिग्री सबसे पहले होगा, क्लियर। अब देखो A और B में हमको आइडेंटिफाई करना है। तो जिसके पास मोर देन अल्फा हाइड्रोजन हो, ये हाइपर कॉन्जुगेशन का टॉपिक हो, तो मोर देन अल्फा हाइड्रोजन इट मींस मोर स्टेबिलिटी। तो मोर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो ये कंपाउंड ज्यादा होगा स्टेबल, यानी इसका रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो उसके बाद होगा A, उसके बाद होगा B। लिखा है when carbocation stability is same then lesser stable alkenes give faster hydration। जिसमें लेसर होगा अल्फा हाइड्रोजन, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर। एंड फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन। देखो अब मेजर प्रोडक्ट करना है, डाइल्यूट H2SO4 है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो OH आके यहाँ जुड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया OH, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई कर रहा है। लेकिन देखो इसमें देखो क्या है, ये होगा, इसमें देखो हाइड्राइड शिफ्टिंग वाला काम आता है। अब देखो यहाँ से शिफ्ट करेगा तो एक्चुअली यहाँ पे OH लगना चाहिए, लेकिन OH लग कहाँ रहा है, देखो फाइनल प्रोडक्ट में यहाँ पर इस कार्बन पे। तो देखो हुआ क्या, ये यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो H2SO4 को ब्रेक करोगे, किस में ब्रेक होगा, H+ और HSO4- में। तो H+ ने आके अटैक किया पहले यहाँ पर, तो देखो इसके ऊपर पॉजिटिव आया। अब ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री। देखो ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब देखो ये अब इसके इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव। ये नेगेटिव वाला फिर पॉजिटिव की तरफ गया, तो क्या बना, CH2। तो किसकी शिफ्टिंग हो रही, हाइड्राइड, यानी यहाँ पे हाइड्राइड किस चार्ज का है, नेगेटिव। देखो इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो इसके ऊपर नेगेटिव, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लिए माइनस, तो ये इसकी तरफ गया प्लस, तो प्लस माइनस न्यूट्रल, देखो CH2 बन गया यहाँ पर, और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होगा, जहां पर रीअरेंजमेंट होगा वहां पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होगा। तो देखो ये 3 डिग्री, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 3 कार्बन से। अब यहां से वाटर अटैच हुआ, तो वाटर अटैच हुआ तो ये वाटर का OH- आके यहां अटैच हुआ, देखो
और H प्लस कहाँ निकल गया बाहर। यही H प्लस क्या होगा, HSO4 माइनस के साथ रिएक्ट करके फिर से क्या बना देगा, H2SO4। अब ये रिएक्शन ऑलरेडी मैंने किया हुआ, देखो फिर से। अब यहां पर देखो, अभी H था, यहां पे क्या आ गया, CH3। तो यहां पे हाइड्राइड शिफ्टिंग हुआ था, यहां पे क्या होगा, मिथाइल शिफ्टिंग। देखो वही चीज है पूरा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसको क्लियर करूंगा। ओके, थैंक यू।